Assalamualaikum students, how are you all? This is your teacher Sayyid Muhammad Irfan, and today we are going to discuss about the theorem 15.1.1 in Federal Code, Pythagoras theorem. This is the statement and we will prove it. So students, we have given that in a right angle triangle the square of length of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the length of other two sides. It means that if we are taking the square of hypotenuse in right angle triangle, so its value will be equal to the square of the sum of the other two sides. We will prove it. You know that in theorem, first of all, we are taking what is given, then to prove, then what is in the construction, then after that we are taking proofs with the help of statement and reason. Okay, so yes, this is right angle triangle BCA. Angle C is 90 degree in measurement. We have given that triangle ACB is a right angle triangle in which measure angle C is equal to 90 degree, because in the right angle triangle यहाँ पे हमारे पास given ये है कि hypotenuse जो है वो right angle है, जब जो हमारे पास hypotenuse है this is the side opposite to right angle, तो angle C हमारे पास right angle है, तो given में हम यही लिखेंगे कि angle ACB is a right angle triangle in which angle C is 90 degree. So after that, to prove, so we are taking, yes, BC is equal to A, BC is equal to A. This is small alphabet of A, that is opposite to capital letter angle. Angle representing by capital letter of alphabet and its side is representing small letter of alphabet. Similarly, we have AC is equal to B and AB is equal to C. So we have to prove here C square is equal to A square plus B square, because we have in statement in right angle triangle, the square of the length of hypotenuse, the square of the length of hypotenuse is equal to the square of the sum of the squares of the other two sides, the sum of the squares of other two sides. So after that, we are taking a right angle triangle BCA. Yes. Construction, draw CD perpendicular from C to AB. इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है. नेक्स्ट, एंड CD इज इक्वल टू H. इसकी जो हाइट जितनी हमारे पास इसकी मेजरमेंट है वो H के बराबर है, एंड AD इज इक्वल टू X. सिमिलरली BD इज इक्वल टू Y. यहाँ पे हमने इसको X लिया, इसको हमने Y लिया, ये हमारे पास H हुआ. अगर हम इसी ट्रायंगल को स्प्लिट करें दो ट्रायंगल्स में से, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, और सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ये है. मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल्स को यहां से हटा के हम यहां पे लगा देंगे, राइट एंगल इधर आ जाएगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, और राइट एंगल इस साइड पे आ जाएगा, जो कि इस फॉर्म में बनेगा. CD splits triangle ACB into two triangles ADC and BDC. Yes, this is first right angle triangle, this is second right angle triangle, and it will become like, which are separately shown in 2A and 2B figures. यहाँ पे देखिए जरा, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल को हमने यहाँ से हटा के इधर लगा दिया, ये वाला राइट एंगल इधर आ गया. अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये इसका हाइपोटेनियस है, और ये वाला जो है इसका बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है. और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से आके यहाँ पे डी पॉइंट जो है ये राइट एंगल है, ठीक है, और ये इसका बेस है, और ये इसका हाइट है, और ये वाला हाइपोटेनियस हो गया. हमारे पास सभी तीन ट्रायंगल्स है, और इनकी कंपैरिजन करके ही हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे. Okay students, we have in triangle ADC and triangle ACB. Triangle ADC and triangle ACB.
फर्स्ट ट्राइंगल इज ADC, दिस वन इज, जो कि हमने यहाँ से लिया था, ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल जो है, और इसकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं ACB के साथ, ठीक है। और ACB ट्राइंगल जो है वो हमारे पास इसमें से ये वाला है, ये ट्राइंगल हमारे पास ACB है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, टेकिंग कोरिस्पोंडेंस ऑफ दीस टू ट्राइंगल्स, इन बोथ देम वी हैव एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। यहाँ पे देखिए, जब इस ट्राइंगल को हम स्प्लिट कर रहे थे तो ये वही एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये वही एंगल है जो कि हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मींस दिस एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ठीक है। और इसके लिए हमने रीजन में क्या लिखना है, कॉमन या सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, मींस अपने आप के बराबर है या कॉमन है। नेक्स्ट, ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, ये हमारे पास दोनों राइट एंगल है, एक ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल जो है हमारे पास ADC, एंगल ADC ये वाला है, और एंगल ACB ये वाला है, दोनों राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और नेक्स्ट, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। अब एंगल C और एंगल B आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है कि ये दोनों एंगल्स क्यों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि जब भी आप कोई ट्रायंगल लेते हैं तो तीनों एंगल्स का सम आपस में जब आप लोग सम लेते हैं तो वो 180 के बराबर आता है। तो 180 के बराबर आने की वजह से एक एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ, दूसरा एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ, तो इन दोनों का सम, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि 120 आ रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम 120 आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 120 आ रहा है, तो हमारे पास 60 रह जाता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल्स आपस में 60 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट इफ वी विल हैव इन टू ट्रायंगल्स ऑल द three angles are congruent to each other, so the both triangles are similar triangles. तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं। Yes, next. So triangle ADC is similar to triangle ACB, so that is why you know that, आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनके साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होते हैं, मींस कि इनका रेशियो जो है वो सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो लें x डिवाइडेड बाय b, मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, b है, सही है, और सॉरी बेस आपके पास x है और हाइपोटेन्यूज b है। अब दूसरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपके पास बेस जो है वो b है और हाइपोटेन्यूज आपके पास c है, तो ये आपके पास फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद इट विल बिकम x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाय c। ये आपके पास हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमने इसके बाद क्या करना है, इसी ट्रायंगल को हमने इस ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन में लेना है। सो वी विल टेक द कंपैरिजन बिटवीन दीस टू ट्रायंगल्स, और इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग देयर कॉरेस्पॉन्डेंस। ट्रायंगल BDC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल BCA। अब इन दोनों में देखें, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। जब हम इसको स्प्लिट कर रहे थे तो ये वही एंगल है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लेते हैं इस एंगल की इक्वल, तो उसी तरीके से ये कॉमन होगा, यह सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सेकंड हमारे पास जो है एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। ये वाला और ये वाला दोनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल ACB, एंगल CDB, ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर राइट एंगल्स। Similarly, angle C is congruent to angle A. C and A both are complements of angle B. अच्छा, complements of angle B का मतलब ये है, क्योंकि इसमें भी बच्चों को डाउट है कि complement of angle B का क्या मतलब है। अब देखिए, B जो है वो D के इक्वल हो गया, D जो है वो C के इक्वल हो गया। अब एंगल A और एंगल C, अब ये तो हमारे पास राइट एंगल है, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब इन दोनों का सम भी राइट एंगल है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब इन दोनों में अगर एक एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, मैं लेता हूं कि ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों 60 के इक्वल होंगे। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट है एंगल B को। कॉम्प्लीमेंट मींस कॉम्प्लीमेंट एंगल्स अगर आपको सम 90 के इक्वल आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर these both triangles are similar to each other, मींस कि ये दोनों जो है ये आपस में सिमिलर हैं और ये दोनों जो है ये आपस में सिमिलर है।
जब ये हमारे पास सिमिलर है तो सिमिलर के मुताबिक बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे y डिवाइडेड बाय a मैं ले रहा हूँ, मींस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं y क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज अननोन क्वांटिटी मुझे चाहिए। वहाँ पे अननोन क्वांटिटी बेस पे थी, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी परपेंडिकुलर पे है, तो इस वजह से मैं परपेंडिकुलर को ले रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो y डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c। और अगर हम यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करें, सो इट विल बिकम yc इज इक्वल टू a स्क्वायर, और c जो है इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, और ये सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो, और सेकंड इक्वेशन ये, ठीक है। अभी देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, आंसर के बहुत करीब है। ये टोटल हमारे पास है c जो है वो इक्वल है x प्लस y के, ठीक है। मींस AB इज इक्वल टू c, जो कि x प्लस y के इक्वल है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेकिंग y प्लस x इज इक्वल टू c, y प्लस x इज इक्वल टू c, जो कि हमने सपोजिशन में लिया था, ठीक है। यस, नेक्स्ट। अभी देखिए y जो है, y की वैल्यू आपके पास आ गई थी a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया था। जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन लिया था तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आई थी, y इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय c और x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाय c। y की वैल्यू हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय c, जो कि यहाँ से आया इन दोनों से, और x जो है वो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाय c। थोड़ा सा बैक पे जाओ ताकि हम वो दिखा दें बच्चों को कि कौन सा वाला है, ये वाला x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाय c। मैं यहीं से लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट करो, एंड y इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज जो है हमने इसमें पुट कर दी है, x प्लस y इज इक्वल टू c में the value of x is b square by c, and value of y is a square by c, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह से आया। अभी देखिए जरा, यहाँ पे हमने कुछ स्प्लिटिंग की है, मतलब थोड़ा सा डायरेक्ट हुआ है। तो वो डायरेक्ट किस तरीके से हुआ है कि इसका हमने LCM ले लिया है, a स्क्वायर डिवाइड बाय c प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c। इससे हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है कि ये देखिए a स्क्वायर डिवाइड बाय c प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू c। यहाँ पे LCM लेते हैं तो c आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c। क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, वही सब कुछ आया जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। मतलब आप लोग ने c हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट किया था, और a जो है हमारे पास बेस है, b हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, और ये हमने प्रूव कर दिया है पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। नेक्स्ट करो, ठीक है। देखिए जरा कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये फाइंड आउट करना था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि हमने किया। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट, थैंक यू सो मच।